ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਬੁਬੇਜਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਕਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ। ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਥਿਓਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿਓਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो एक वो भी ਹੁੰਦਾ है। दूजा ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਿਓਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਡ ਥਿਓਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਡ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਫੀਲਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਥਿਓਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਥਿਓਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ। अब ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ में ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ontological, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਟੀਮੋਲੋਜੀਕਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਥੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਲਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली फिर की होंदी है। क्वांटिटेटिव रिसर्च होंदी है कि तुसी न्यूमेरिकल डेटा नू इकट्ठा किया, डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया, मैथमेटिकली एनालाइज किया, कोई ना कोई ऑपरेशंस कोई फॉर्मूला ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਟ ਕੀਤਾ। जो भी ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है ਉਹਦੇ बेस ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है कस्टमर सैटिस्फैक्शन तो उसी इस हिसाब ਨਾਲ लगाओगे। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है प्रेफरेंस तो ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ लगाओगे। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है कस्टमर सेंटीमेंट्स तो ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ लगाओगे।
जो भी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੂਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। तो उसनू कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जी होंगी है उसनू डिफरेंट पार्ट्स में असी डिवाइड कर सकते हैं। जिकन पहला असी डिवाइड करांगे कि फॉर्मल उहदा क्वेश्चन की है, उहदा ऑब्जेक्टिव की है, ऑब्जेक्टिव होने के बाद उसकी सिस्टमेटिक प्रोसेस की होएगी, असी किस मैथड के हिसाब नाल उहदा डेटा कलैक्ट करेंगे, असी इंटरव्यू लवांगे, असी 1-to-1 इंटरैक्शन करांगे, असी क्वेश्चनियर बनावांगे, असी सिचुएशन की होएगी, किस सिचुएशन ते करना चाहते हो, जियोग्राफिकल लोकेशन की होएगी, किस सिटी का करना चाहते हो, किस शहर का, किस कंट्री का करना चाहते हो, उस हिसाब नाल और कौन से केड़े वेरीएबल्स ने जिन्हां दे विचकार तुसी रिलेशनशिप मेनटेन करना चाहते हो। तो आप जिन्हों ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट वेरीएबल उहदा की है और डिपेंडेंट वेरीएबल उहदा की है। डिपेंडेंट वेरीएबल वो होंदा है जिहदे ते इफेक्ट आंदा है, इंडिपेंडेंट वेरीएबल वो होंदा है जिहदे ते इफेक्ट असी चेंजेस करने हाँ। जो एक्सपेरीमेंट होंदा है वो इंडिपेंडेंट वेरीएबल करदा है, उहदा चेंज तुहानू डिपेंडेंट वेरीएबल ते दिखदा है। जिकन डिमांड वधी ते सप्लाई घटेगी कि वधेगी, तो सप्लाई जड़ी होएगी वो डिपेंडेंट वेरीएबल है और डिमांड जड़ी है इंडिपेंडेंट वेरीएबल है। इंडिपेंडेंट वेरीएबल दैट मीनस हम तो किसी को भी नहीं पता कि इस वारी दिवाली किस तरह मनाई जाएगी, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस चलते पे ने, किसी ने पता ब्याह शादियां में किस तरह की परमिशन मिलूगी, किस तरह की परमिशन नहीं मिलूगी। तो जे असी ए डिसाइड करा कि बई इस वारी दिवाली ते शॉपिंग जड़ी होएगी उहदी प्रोडक्ट्स की डिमांड किकण होएगी, तो जड़ी डिमांड है उस डिमांड के हिसाब नाल सप्लाई होएगा। तो तुहानू एक अजम्पशन लेना पऊगा कि डिमांड वधेगी या डिमांड घटेगी या किन्ने परसेंट तो घटेगी या किन्ने परसेंट तो वधेगी। वो अजम्पशन जिहड़ा हुंदा है वो अजम्पशन तुहानू वेरीएबल के विचकार दा रिलेशनशिप मेनटेन करन विच हैल्प करता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट भी ਵੇਖਣਾ पएगा कि ਜਿਹੜਾ भी अजम्पशन ਤੁਸੀਂ लेकर चल रहे हो उस ਨੂੰ एनालाइज ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ट्रीटमेंट ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिकली ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਕਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो वो सारी चीज़ां जिहड़ी तुसी जदे भी क्वांटिटेटिव रिसर्च दा करने दा सोचते हो तो ये सारे वेरीएबल्स आप जी नूं पहला डिसाइड करने होंदे ने। उहदे बाद तुसी कद करोगे, व्हेन डू, कद करना है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुसी कद करना चाहते हो। तो कद करना चाहते हो दैट मीनस तुसी व्हेन नूं आइडेंटिफाई कर रहे हो, वैन नूं आइडेंटिफाई करन वास्ते तुहानू कुछ रिसर्च करनी होएगी, तो तुहानू न्यूमेरिकल एविडेंस आइडेंटिफाई करना है, तो तुहानू दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम दी डिज़ाइन की है। डिज़ाइन के हिसाब नाल सब तो पहला डिसाइड होता है कि डिज़ाइन प्रोसेस तुसी डिसाइड करो और उस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कि उस प्रॉब्लम जो जिसनू तुसी प्रॉब्लम समझ रहे हो कि किसी शॉप पे सपोज तुसी किसी ब्रांड का कस्टमर सैटिस्फैक्शन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो या तुसी ए चाह रहे हो कि ਉਹਦਾ कंज्यूमर रिव्यू की है, लोग की सोचते हैं ਉਹਦੇ ब्रांड के बारे, सर्विसेज के बारे की सोचते हैं। तो अगर एक कुछ तुसी कोई प्रॉब्लम समझ रहे हो कि भैया मैनू ए प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करना है, कंपनी की ये प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट सेल तो हो रहा है लेकिन सानू ये नहीं पता कि कस्टमर व्यू मिक्सअप आ रहे हैं, तो किस रीजन तो पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहे हैं, एक कुछ आइडेंटिफाई करना है तुहाडे कोल, या कस्टमर का परसैप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो जे एक कोई तुहाडे दिमाग विच क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के हिसाब नाल तुसी उसका डिज़ाइन प्रोसेस बनाओगे कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ इनोवेशन की करना चाहते हो। जे उन्होंने कस्टमर रिव्यू ऑटोमैटिकली दिखता पे है वो एनालाइज करना चाहते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ नवा कुछ नहीं कर रहे, पर जे तुसी चाहते हो कि तुसी डेमोग्राफिक वेरीएबल के हिसाब नाल उसनू आइडेंटिफाई करो कि 20 साल वाला बंदा उस प्रोडक्ट के बारे की सोचता है, 60 साल वाला बंदा वो प्रोडक्ट बारे की सोचता है, मेल की सोचता है, फीमेल की सोचता है, शहर का होंदा है तो की सोचता है, ग्राह का होंदा है तो की सोचता है। अगर एक तुसी अलग अलग एरिया के हिसाब नाल अगर कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उस आइडेंटिफाई करने के वास्ते तुहानू एक डिज़ाइन बनानी पऊगी
और उस डिज़ाइन के वास्ते तुहानू एक हाइपोथेसिस डिसाइड करनी पेगी। हाइपोथेसिस कहता है कि तुसी तुहाडा असम्पशन जिकन क्वालिटेटिव पेपर में असी असम्पशन की जगह प्रपोजिशन कहने वो भी एक तरह का असम्पशन ही होंदा है। असी मान के चलने कि जड़ा जो भी कुछ सानू दिख रहा है एग्जिस्ट करता है कंपनी ओदा असम्पशन असी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब नाल एक प्रपोजिशन बना लेने। इसी तरह क्वांटिटेटिव पेपर्स विच भी असी एक असम्पशन बना के चलने कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन का ब्रांड सर्विसेज से कोई रिलेशन है कि कोई रिलेशन नहीं है। और उस असम्पशन ते तुसी अपना रिसर्च स्टार्ट करोगे। तुसी देखना चाहते हो कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन और कस्टमर सर्विसेज जड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ कस्टमर लॉयल्टी जड़ी है वो मीडिएशन का रोल प्ले करती है। मतलब अगर सर्विसेज होएगी अच्छी चंगी सर्विसेज होंगी तो चंगी सर्विसेज के कारण लॉयल्टी वधूगी और लॉयल्टी वध रही है तो सैटिस्फैक्शन वधूगा। तो जे तुसी अगर इस तरह का वेरीएबल लेके चल रहे हो कि कस्टमर सर्विसेज भी आइडेंटिफाई करना चाहते हो और तुसी वेखना चाहते हो कि जब चंगी सर्विसेज होंदियां ने तो बंदा रिपीट परचेसिंग करता है कि नहीं करता, और अगर रिपीट परचेसिंग करता है तो ही उसको सैटिस्फैक्शन मिलता है कि डायरैक्ट कस्टमर सर्विस होंदी है और उसको सैटिस्फैक्शन मिल जाऊगा। तो तुहानू अगर फाइंड आउट करना है ये तुहाडी प्रॉब्लम तो उस हिसाब नाल तुसी असम्पशन लेके चलोगे कि जड़ी लॉयल्टी है कस्टमर लॉयल्टी वो अज्यूम करोगे कि वो मीडिएशन का रोल प्ले करती है। फिर तुसी उस हिसाब नाल डेटा कलैक्ट करोगे, डेटा के उत्ते एनालाइज करोगे, एनालिसिस करने के बाद तुसी दसोगे कि वो सच है कि झूठ है और एक्सैप्टेड है कि नहीं। लेकिन वो डिज़ाइन बनाने तो पहला असी वापस रिपीट करांगे और जड़ा कल का लैक्चर सी साडा ऑन्टोलॉजी की होंदी है, एपिस्टेमोलॉजी की होंदी है, मैथडोलॉजी की होंदी, की तरह की टेक्निक्स होंदी है। तो ऑन्टोलॉजी तुहानू पता है दैट इज़ वो डिपेंड करता है तुहाडे असम्पशन रियल असम्पशन ते रियलिटी ते डिपेंड करता है। नेचर ते वर्ल्ड जड़ा एग्जिस्ट करता है उहदे विच जड़ी कंपनी जड़ा उहदा एग्जिस्टेंस है वो ऑन्टोलॉजी कहलाती है, एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। जड़ा असम्पशन बेस्ड होंदा है जो तुहाडी एक्सपीरियंस से अपनी फीलिंग से तो एक नज़रिया होंदा है उसनू देखने का, उस नज़रिए के हिसाब नाल तुसी अज्यूम करते हो। हर किसी का अपना अपना नज़रिया हो सकता है, कोई भी गलत या सही नहीं होंदा। डिपेंड करता है कि तुसी अपने नज़रिए नू प्रूव करने वास्ते कैड़ी मैथड यूज़ की है और क्या वो सही प्रूव होया है कि नहीं होया है। तो उसी बेस के हिसाब नाल तुसी ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी डिसाइड करते हो। जे एक बार तुसी डिसाइड कर लिया तुसी तो डिसाइड कर लिया कि तुहाडी प्रॉब्लम की है और तुसी उस प्रॉब्लम ते किस तरह का असम्पशन लेके चल रहे हो। तो उसके बाद नैक्सट नंबर आता है मैथडोलॉजी। रिसर्च टेक्निक की यूज़ करोगे, उस टेक्निक के उत्ते केड़ी मैथड लगाओगे, डेटा किकन कलैक्ट करोगे, डेटा 1 to 1 कलैक्ट करोगे, क्वेश्चनियर करोगे, किस तरह का डेटा होएगा, सेकेंडरी डेटा होएगा, प्राइमरी डेटा होएगा, किस तरह का डेटा से तुसी काम करना चाहते हो। तो उस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वास्ते तुहानू क्लासीफाई करना होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्लासीफिकेशन होता है, पहला होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दूजा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और तीजा होता है अदर एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन। तो असी मेन रिसर्च डिज़ाइन में डिस्कस करांगे जिहड़ा सोशल साइंस में जरूरी होता है, जिहदे बारे सारे नू समझ आना जरूरी होता है। किसी भी तरह की रिसर्च करन तो पहला तुहानू यह समझना बहुत जरूरी होता है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन केड़ी होंदी है, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन केड़ी होंदी है। उस हिसाब नाल तुसी अपनी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो, अपने डिज़ाइन बना सकते हो। तो जिहड़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होंदियां ने उहदे ते कुछ स्पेशल डायमेंशनस होंदियां ने, जिकन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विच आंदा है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। असी एक बारी मेन जी है एक एक करके डिस्कस करांगे। सो ये सारी तीनों तरह की जी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होंदियां ने एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइना ते ऑब्जरवेशन जोड़ा होंदा है कंट्रोल्ड होंदा है। मतलब तुहाडे हत्थ विच है कि तुसी कितना एक्सपेरिमेंट किस ग्रुप ते एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कितना डेटा कलैक्ट करना चाहते हो, ओदे जिहड़ा रिलेशनशिप तुसी एग्जामिन करना चाहते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ इंडिपेंडेंट अपने हिसाब नाल चूज़ करते हो, डिपेंडेंट अपने हिसाब नाल चूज़ करते हो और उन्हों का इफेक्ट देखना चाहते हो।
तो रैंडम बेस्ड होंदा है, ਉਹਦਾ एक्सपैरीमेंटल पूरा कंट्रोल होता है। जे तुसी चाहो तो 5000 ते कर सकते हो, जे तुसी चाहो तो 500 ते कर सकते हो, जे तुसी चाहो तो इंडिपेंडेंट वेरीएबल एक पर्टिकुलर वेरीएबल ने बना के दूजे ਨੂੰ बना सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एक्सपैरीमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ट्रू एक्सपैरीमेंट ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ट्रू एक्सपैरीमेंट ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ चेक कर सकते हो, तुसी जिसनू चेक करके लैबोरेटरी विच चेक करके टेस्ट करके दस सकते हो कि ये चेंज होया। जनरली वो साइंटिफिक रिसर्च होंदियां ने जिंदे विच बिल्कुल क्लीयर कट जे तुसी कुछ मटीरियल लिया, कुछ बनाया, कुछ लैब विच कुछ टेस्टिंग किया, तो टेस्ट करने के बाद जिसनू तुसी क्लीयर कट प्रूव कर सकते हो कि ये ए वेरीएबल है और एदे विच अगर ए एक्सपैरीमेंट करने तो ए रिजल्ट आना। तो इस तरह का एक्सपैरीमेंट जोड़ा होंदा है वो ट्रू एक्सपैरीमेंट होंदा है। ये ट्रू एक्सपैरीमेंट जोड़ा होंदा है वो थॉट्स ऑफ एज ए लैबोरेटरी स्टडी होंदा है। मतलब साड़ी बहुत सारी थॉट्स है, बहुत सारी चीज़ां ने, बहुत सारे केसेस ने असीं लिया होया है और उस केसेस ने तुसी जाके प्रूव किया कि ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है और इन्हां दे हिसाब नाल ये टेस्ट लगूगा, ये ट्रीटमेंट होंदा है और ट्रीटमेंट तुहानूं तुसी प्रूव किया कि जो मैं सोचिया सी उहिओ सच है। सोचिया सी कि लॉयल्टी तो तद ही होएगी जब रिपीट परचेसिंग होगी। तो अगर एक सोच रहे हो तो उसको उस हिसाब नाल प्रूव करना पड़ेगा। फिर आंदा है क्यों करना है असी एक्सपैरीमेंटल रिसर्च। एक्सपैरीमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपैरीमेंटल दोनों ने, तो असी एक्सपैरीमेंटल रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, वॉट इज़ द ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव होगा। तो ਉਹਦਾ ऑब्जेक्टिव है ਤੁਸੀਂ रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेनटेन करना चाहते हो। ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करना चाहते हो कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ वेरीएबल है वो दूजे वेरीएबल ਤੇ कुछ इफेक्ट होता है। अगर ए वध रहा है तो की ए घट रहा है और अगर ए घट रहा है तो की ए वध रहा है। दोवां ਦਾ रिलेशनशिप ਤੁਸੀਂ मेनटेन वेखना चाहते हो। ਤੁਸੀਂ वेखना चाहते हो कि अगर बारिश बादल बनते हैं और बारिश ज़्यादा आती है, ज़्यादा आती है तो फसल तो वह नुकसान होता है, वह फायदा होता है, की होता है। तुम देखना चाहते हो कि अगर फसल को कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा लगन के बाद तुसी ओदे ते कैमिकल ओदे ते मेडिसिन डालते हो तो उसनू वो फायदा करता है कि नुकसान करता है, उसनू कोई इफेक्ट होता है कि नहीं इफेक्ट होता। जो तुसी देखना चाहते हो कि बाजार में तरह तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं तो वो अलग अलग एडवरटीजमेंट्स आंदियां ने, तो उस एडवरटीजमेंट नू वेखण दे वास्ते वेखण दे बाद लोकी उहदे हिसाब नाल पॉजिटिव सोचते हैं कि नैगेटिव सोचते हैं, दुकान ते जाके शॉप परचेस करते हैं कि नहीं करते हैं। इस तरह का कुछ भी रिलेशनशिप तुसी मेनटेन करना चाहते हो तो इहो रिलेशनशिप जोड़ा हुंदा है वो तुसी एक्सपैरीमेंटल डिज़ाइन नाल ही कर सकते हो। और उसकी कंडीशन की है, वो हाईली कंट्रोल्ड होंदी है, बहुत ही सिस्टमैटिक होंदी है और उहदे ते तुसी ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड करना होंदा है कि की ऑब्जेक्टिव है तुहाडा, तुसी की आइडेंटिफाई करना चाहते हो और उहदे विच तुसी बिल्कुल क्लीयर कट डिफाइन करते हो ए डिपेंडेंट वेरीएबल है, ए इंडिपेंडेंट वेरीएबल है और उहदे हिसाब नाल तुसी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो रिसर्च की। तो ट्रू एक्सपैरीमेंट डिज़ाइन तुहानूं हुण समझ आ गया होना है कि ट्रू एक्सपैरीमेंट डिज़ाइन जिहड़ी होंदी है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरीएबल के हिसाब नाल होंदी है। उहदे विच तुसी मैनिपुलेशन जिहड़ा करदे हो वो इंडिपेंडेंट वेरीएबल दा करदे हो, तुसी अपने हिसाब नाल कंट्रोल रखते हो इंडिपेंडेंट वेरीएबल ते। तुहानूं जितना चेंज करना है उस हिसाब नाल, जिकन तुसी अगर सपोज करो कि तुसी घर च खाना बना रहे हो, अब खाना बनाने का जिहड़ा इंडिपेंडेंट वेरीएबल होंदा है वो की होंदा है, तुसी कोई सब्जी बना रहे हो तो उसका इंडिपेंडेंट वेरीएबल की है, तुहाडी मैथड है, तुसी जिहड़ी चीज़ पर जिहड़ा इंग्रेडिएंट पाना चाहोगे वो पाओगे। जे तुहानूं लगता है कि तुहानूं तीखी बनानी तुसी मिर्ची ज़्यादा पा दोगे, जे तुहानूं लगता है मिट्ठी बनानी तो तुसी शक्कर पा दोगे। तो जिहड़ा तुहाडा हत्थ है वो इंडिपेंडेंट है, उहदे ते तुसी अपना टेस्ट दे रहे हो उहदे ते और तुसी अपना टेस्ट देने के बाद तुसी ये देखना चाहते हो कि बच्चों को चंगा लगे कि नहीं। और जे तुसी नमक ज़्यादा पाते हो तो उन्हां ते नेचर विच की चेंज आता है, जे नमक घट पाते हो तो की होंदा है, जे मिर्ची ज़्यादा पाते हो तो की होंदी, मिर्ची घट पाते हो तो की होंदी है। तो ये जिहड़ा मैनिपुलेशन है वो कित्थे होगा, ये तुहाडे इंडिपेंडेंट वेरीएबल ते होगा, तुहाडे हत्थ ते होगा। एकन ही रेंडमाइजेशन वो होंदा है जिहड़ा एवरी सब्जैक्ट वो कहंदा है कि हर चीज़ नूं हर सब्जैक्ट नूं इक्वल चांस मिलता है परफॉर्म करने का, असाइन होने का। मतलब तुहाडे कोल मिर्ची भी है, नमक भी है, धनिया भी है, सब कुछ है, तुसी सब्जी बना रहे हो
तो तुहानू इक्वल चांस है कि तुसी केड़ा इंग्रेडिएंट पहला पाओगे और किदा टेस्ट तुसी बढ़ाना घटाना चाहते हो। और ये तरह कंपनी भी है, हर जिन्ने भी सब्जेक्ट्स ने, जिन्नी भी प्रॉब्लम्स के सब्जेक्ट्स ने, उन्होंने इक्वल चांस है कि तुसी किस नू कंट्रोल करना चाहोगे, है ना। जिकन कॉइन अगर तुसी फ्लिप कर दो तो हेड आएगा कि टेल आएगा, दोवां दा इक्वल चांस है। केड़ा भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है 50%, टेल भी आ सकता है। एक नहीं तुसी ड्राइंग करोगे, अगर कुछ ड्रॉ करते हो तो तुसी ड्रॉ करन दे बाद तुसी इक्वल तुहाडी थॉट ते सारी चीज़ां दे इक्वल थॉट है। तुसी की करोगे, किस तरह का बना रहे हो, ये सब कुछ इक्वल थॉट के हिसाब नाल आंदा है। तुहाडा जेड़ा इंटरस्ट होएगा उस हिसाब नाल वो चीज़ां चेंज होणगियां। दैन ਉਹਦੇ बाद आंदा है ये हुंदा है ट्रू एक्सपेरिमेंट। ਉਹਦੇ बाद आंदा है कासी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ है एक्सपेरिमेंट कहता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ स्टैबलिश करना है रिलेशनशिप वेरीएबल्स के विचकार, साथ ही साथ ਤੁਹਾਨੂੰ डिज़ाइन जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंट के हिसाब नाल ही होंदियां ने। बट डिफरेंस की होंदा है, मेन डिफरेंस की होंदा है, इंडिपेंडेंट वेरीएबल जोड़ा होंदा है वो मैनिपुलेट बाय एक्सपेरिमेंटर होंदा है ट्रू विच, एंड इफेक्ट जोड़ा होंदा है इंडिपेंडेंट वेरीएबल का वो डिपेंडेंट वेरीएबल के हिसाब नाल मेजर होंदा है ना। मतलब जड़ा भी तुसी चेंज करोगे इंडिपेंडेंट ते उस डिपेंडेंट ते जाके तुसी मेजर करोगे कि मेजर चेंज होया कि नहीं होया, ये ट्रू होंदा है। बट अगर तुसी कासी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुहानू देखना पएगा कि रिसर्च स्टडी जड़ी होंदी है वो दोवां साइड, मतलब दोवां साइड दे वास्ते इक्वल असेंशियल इंपॉर्टेंट होंदी है। जिकन तुसी ये करो कि तुसी पहला तो एग्जिस्टिंग ग्रुप लोगे और उसनू ग्रुप नू फॉर्म करोगे और फॉर्म करन दे बाद तुसी उसनू कंपेयर करोगे। जिकन तुसी देख सकते हो लिखिया है कि रिसर्चर डज नॉट रैंडमली असाइन ग्रुप एंड मस्ट बी वन आर दैट नेचुरली फॉर्म। प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप मतलब तुसी सोची समझा अजम्पशन नहीं ले सकते, जो तुहानू पता ही है कि भाई यो सच होने वाला है, कर नहीं कर सकते। तो क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च इज दैट कंपेयर करो एक्सपेरिमेंट रिसर्च नू, ओदी वीकनेस आइडेंटिफाई करो और ओदे बाद रिलेशनशिप मेंटेन करो। या तुसी ये कर सकते हो कि तुसी तुहानू पता है कि कुछ पर्टिकुलर काम करन दे बाद जिकन तुसी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करोगे और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करन तो तुहाडी जड़ी लिमिट है, तुहाडा पैसा है जड़ा वो लिमिट नू क्रॉस कर जाएगा और तुहानू हो सकता है कर्जा लेना पाओ। तो ए तुहानू पता है और ए पता है ओदे बाद भी वो रिलेशनशिप तुसी मेंटेन मतलब लोकी कर ही रहे हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं कि लोग करते नहीं। जिकन स्मोकिंग सिगरेट पीन दे बाद लोगों को कैंसर होता है, लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप तो है ही, लोग कर ही रहे हैं और उसके बाद होंदा ही है। तो तुसी कह सकते हो कि क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च होता है जड़ा डूइंग वन थिंग, कुछ एक काम करो और उसका कॉज जड़ा है वो पर्टिकुलर इक्को ही फिनोमेना मतलब इक्को ही डायमेंशन पे है कि तुसी ये कर रहे हो तो ਇਹ वाला रिजल्ट आएगा। तुसी एक काम किया तो उसका रिजल्ट आएगा। तुसी अगर गैस तेज कर दिता सब्जी जलनी है, तुसी गैस तेज कर दिता तो सब्जी जल जाऊगी। तो ये तुहानू पता है कि एक इफेक्ट तुसी अगर ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो तुहाडा जड़ा है वो तुहानू उधार लेना पएगा, लोन लेना पएगा, या तुसी ज़्यादा खर्चा करोगे तो तुहानू लोन लेना पड़ सकता है। जे तुसी पढ़ाई नहीं करोगे तो तुहानू चंगा काम नहीं मिलूगा। तो यह जी चीज़ां ने इस तरह का जोड़ा डायमेंशन है, यह डायमेंशन जोड़ा होंदा है इसनू कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट। उसके बाद गल आती है कि तुहाडे जोड़ा होंदा है वो किस तरह होंदा है एक्सपेरिमेंट। कासी एक्सपेरिमेंट का है वो किस तरह का, जिकन असी ट्रू विच देखिया सी कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये भी होंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ कि भाई इंडिपेंडेंट ਦੇ ਤੁਸੀਂ चेंजेस करोगे, डिपेंडेंट ਦਾ जाके एक्सपेरिमेंट टेस्ट करोगे। ऐसी तरह ऐसे भी है कि वो फुल्ली कंट्रोल्ड होता है, उन्ना कंट्रोल नहीं होता, इन्ना इसनू लैस कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब घट कंट्रोल रहता है। ये बहुत सारी चीज़ें जी है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करदियां ने।
हो सकता है कि इन्वायरमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਕਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ज़्यादा आएगी तो की होएगा, घट आएगी तो की होएगा, एक कर सकते हैं, पर कितनी आऊगी आऊगी कि नहीं आऊगी ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਕੰਟਰੋਲ। ਸੈਂਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, है ना। तो वो चीज़ें सिलेक्टिव होंगे ने। ऑल वेरिएबल इन द स्टडी कैन बी कंट्रोल बाय द रिसर्चर, बाकी रेस्ट ऑफ द सारे वेरिएबल्स होंगे ने वो सारे कंट्रोल्ड नहीं हो सकते रिसर्चर के थ्रू। मतलब तुसी अपने हिसाब नाल पूरी इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। जे एक बंदा कमा रहा है और वो शॉपिंग कर रहा है तो वो आसपास बहुत सारी चीज़ा हो सकती ने, वो शॉपिंग ज़्यादा करन तो वह कर्जा होएगा, ये तो फैक्ट है। लेकिन बहुत सारी अलग डायमेंशन ही, परिवार ही वड्डा है, ਉਹਦੇ परिवार में ही 15 लोग रहते हैं, उसनों करना ही पैंदा है, उसनों ज़्यादा ही शॉपिंग करनी पैंदी है, ज़्यादा सामान लेना पैंदा है, इसलिए ज़्यादा करके बहुत सारे डायमेंशन होंगे ने किसी भी एक तरीके। तो वो जो सारे डायमेंशन होते हैं असी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसनों कहते हैं कॉस्ट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आंदा है नॉन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च। मैं उम्मीद करनी हाँ हुण तक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तुहानू समझ आ गई होनी है, जिहदे असी 2 एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस कर लिया है और क्वासी एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस कर लिया है। तो हुण असी गल करांगे कि नॉन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च की होता है।